Alright, in this particular class we are going to do a few problems. We will start with previous year solutions, previous year problems for your chapter 2, that is electric charge potential and the capacitance that is there. Now let us first solve March 2016 paper. March 2016 का problem है. Yeah, it is visible. Let me dictate the question for you and those who have not yet taken the book. I kept telling you to take the book because in this week I am planning a test which involves all the three chapters, first chapter, second chapter and ray optics. All the three chapters together, you will be having a test this week. So those who haven't not bought it, please come back fast, buy it off. Today is Monday, so I am planning for a test on Thursday or Friday. In these 2 days you may be having one test. I'll decide by today night and I'll let you know कि किस दिन है क्या time है. So please make sure you prepare for the test, all the three chapters, clear, and whatever I have done till that one day before the test, everything will be there in the syllabus, clear. So problem से हम शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स भी उस सिलेबस में होंगी, उस आने वाले टेस्ट में होगा. Now take down the question. When two capacitors are connected in series, when two capacitors are connected in series, when two capacitors are connected in series, when two capacitors are connected in series and connected across 4 kilovolt line and connected across 4 kilovolt line and connected across 4 kilovolt line, comma, the energy stored in the system is 8 joule. The energy stored in the system is 8 joule. When two capacitors are connected in series and connected across 4 kilovolt line, comma, the energy stored in the system is 8 joule. Full stop. The same capacitors if connected in parallel, across the same line, the energy stored is 36 joule. The energy stored is 36 joule. Full stop. Find the individual capacitances. I repeat the question one last time. When two capacitors are connected in series and connected across 4 kilovolt line, comma, the energy stored in the system is 8 joule. The same capacitors if connected in parallel across the same line, comma, the energy stored is 36 joule. Find the individual capacitances. तो डेटा बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है. Really simple problem. He has given what has he given? Two capacitors are connected in series, ठीक है. डेटा को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. When two capacitors are connected in series across 4 kilovolt line, ठीक है. जाहिर सी बात है दो कैपेसिटर है C1 एंड C2 जिनकी वैल्यूज हम नहीं जानते, ठीक है. यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जमा है, when connected in series combination, he says the energy stored across 4 kilovolt line, voltage is 4 kilovolt, done. And what else has he given in that first line? Energy stored in the system is 8 joules. Energy is 8 joule. When is this? When it is in series. When it is in series. All right. Then what else has he told? The same capacitors if connected in parallel. यहाँ पर भी वही C1 and C2 हैं जिनको हम नहीं जानते, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेटा, ठीक है. And connected in parallel across same line. He says same line, so potential is again 4 kilovolt. Then the energy stored is 36. Energy in parallel combination is 36 joule.
फाइंड द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, यानी C1 C2 को हमें पहचानना है। ठीक है, दिस इज योर मार्च 2016 5 मार्क प्रॉब्लम। ठीक है, एज सून एज ही सेड C1 एंड C2 सीरीज, C1 C2 पैरेलल, क्लियरली दो फॉर्मूलाज तो बनते हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला। कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर टू कैपेसिटर्स इज गिवन बाय C1 C2 by C1 plus C2। लास्ट क्लास आई हैव डन दैट, C1 C2 by C1 plus C2, या फिर हमने यूँ कहा था 1/CS इक्वल्स 1/C1 plus 1/C2, उसे सॉल्व करोगे ये वाला मिलेगा, प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, एंड CP कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज C1 plus C2, कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज C1 plus C2। ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मिला के 1 मार्क बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वेटेज भी समझा रहा हूँ एज वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, और एनर्जी के बारे में उसने बात की है, तो एनर्जी इज गिवन बाय हाफ CV², एनर्जी इज गिवन बाय हाफ CV²। ये एक फॉर्मूला लिखने से इसको भी आपको 1 मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो रिलेवेंट है, डेटा के हिसाब से ये फॉर्मूलाज होंगे, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, एंड एनर्जी हैज़ गिवन एज हाफ CV²। ठीक है, तो पहले डेटा को, ये वाले सीरीज के डेटा को ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, पहले वाले डेटा को आप लिखोगे 8 इज इक्वल टू, यानी U इक्वल्स हाफ CV²। ठीक है, ऊपर लिख सकता हूँ U सीरीज इज इक्वल टू हाफ CSV²। एनर्जी इन सीरीज इज इक्वल टू हाफ टाइम्स कैपेसिटर्स इन सीरीज टाइम्स V²। एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 8, half as it is. Capacitors in series is given by C1 C2 by C1 plus C2. V square is 4 into 10 power 3 the whole square. I hope you understand. I have written energy in series US is equal to half CS V square. C is CS, E is U, C is CS. फिर US is nothing but 8 joule, half ऐसे ही CS series के लिए C1 C2 by C1 plus C2, एंड देन V स्क्वायर इज 4 into 10 power 3 किलो वोल्ट है वो। ठीक है, किलो को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, 4 into 10 power 3 द होल स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले डेटा का इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन वी नो दैट UP इज हाफ CPV², एनर्जी इन पैरेलल इज हाफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल टाइम्स V²। UP एनर्जी इन पैरेलल इज 36 joule, then half CP capacitors in parallel is C1 plus C2। ठीक है, V square is 4 into 10 power 3 the whole square। This is your equation number 2। I repeat, 36 equals half times C1 plus C2 times 4 into 10 power 3 the whole square। I hope this is clear। अब equation 1 और equation 2 इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 36 इक्वल्स हाफ C1 प्लस C2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 द होल स्क्वायर है। इसमें से C1 प्लस C2 बाहर करेंगे, C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 36, 36 इंटू 2 कर लिया, डिनोमिनेटर में ये आएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 द होल स्क्वायर, 36 इंटू 2 बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 द 4 इंटू 10 पावर 3 सॉरी 4 इंटू 10 द पावर 3 प्लस 3 है, प्लस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो C1 प्लस C2 आना चाहिए 4.5 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर आना चाहिए जब आप सॉल्व करते हो। यूज़ कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो जब ही जैसे ही C1 प्लस C2 मिल गया, अब ये वाला सॉल्व करना इजी हो गया। इक्वेशन 1 जो है वो है 8 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स C1 C2 बाई C1 प्लस C2 टाइम्स 4 इंटू 10 पावर 3 होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद C1 C2 को अलग करके C1 C2 प्रोडक्ट क्या है वैल्यू वो पहचानोगे। ठीक है, C1 C2 वैल्यू यू विल फाइंड आउट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर, डन।
एंड वंस यू फाइंड C1 C2 वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या होगा, 8 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 16, 16 16 1 आ जाएगा, नीचे 10 पावर 6 आएगा, तो C1 C2 इज 10 पावर -6 आएगा एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है, डन। ऐसे कर रहा हूँ मैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 8 इंटू 2 इंटू C1 C2, C1 प्लस C2 इज 4.5, ठीक है, अच्छा ये भूल गया, 10 पावर -6 के साथ और भी कुछ आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर 6, ये 10 पावर -6, ठीक है, अच्छा 4 नहीं 16 आएगा, 4 4 जो 16 आएगा, तो 16 और 8 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 4.5 10 पावर -6, ये -6 तो 10 पावर -12 होगा, 4.5, तो C1 C2 प्रोडक्ट आएगा 4.5 10 पावर -12, 4.5 10 पावर -12, तो ये जो भी आए आप सॉल्व करना उसको। तो A प्लस बी आपके पास है, ए बी आपके पास है, तो अब A माइनस बी मिलना है, ठीक है, A माइनस बी मिलने के लिए A माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी द होल स्क्वायर, पेंडिंग क्या आएगा, A माइनस बी द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पर A प्लस बी द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, प्लस 2AB को माइनस 2AB बनाने के लिए -4AB, सो दिस इज वन फॉर्मूला, A minus b the whole square equals A plus b the whole square minus 4AB, check if it is proper, A minus b the whole square is A square plus b square plus 2AB, sorry minus 2AB, here A plus b the whole square is A square plus b square minus 2AB, oh man, completely gone. See, just look at it, A minus b the whole square is A square plus b square minus 2AB, A plus b the whole square is A square plus b square plus 2AB, and here is minus 4AB, minus 4AB plus 2AB will become minus 2AB, so it will be equal, so this formula is proper, ठीक है, I repeat, A minus b the whole square is A square plus b square minus 2AB, A plus b the whole square is A square plus b square plus 2AB, minus 4AB becomes minus 4AB plus 2AB is minus 2AB, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इसमें से आप A प्लस बी की जगह पर C1 प्लस C2 सब्स्टिट्यूट करोगे, C1 प्लस C2 वाला वैल्यू होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स C1 C2 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, C1 माइनस C2 द होल स्क्वायर मिलेगा, तो उसको सॉल्व करना, C1 माइनस C2 इक्वेशन बना के निकालो, C1 माइनस C2 आना चाहिए 1.5 माइक्रोफैरड, C1 माइनस C2 आना चाहिए 1.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो जैसे ही C1 माइनस C2 मिल गया, अब उसके बाद C1 प्लस C2 लिख लो, कितना आया था 4.5 माइक्रोफैरड, C1 माइनस C2 लिख लो, कितना आया है 1.5 माइक्रोफैरड, इसको सॉल्व करो, फाइंड आउट C1, फाइंड आउट C2, ठीक है, सॉल्व करो, फाइंड आउट C1 एंड C2, सो योर फाइनल आंसर्स विल बी C1 इज 3 माइक्रोफैरड, C2 इज 1.5 माइक्रोफैरड। आई होप दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्या था इस प्रॉब्लम में, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन का डेटा दिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेटा दिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने डाल दिया, सीरीज एनर्जी कैपेसिटर्स इन सीरीज C1 C2 बाई C1 प्लस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इक्वल C1 प्लस C2, एनर्जी उसने बोल दिया है तो E इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, हाफ CV स्क्वायर लिया, वी कैन ऑल्सो टेक हाफ QV, नो वी विल नॉट बी टेकिंग QV, वी विल नॉट बी टेकिंग Q स्क्वायर बाई 2C, बिकॉज Q के ऊपर डेटा नहीं दिया है, ही हैज़ गिवन डेटा ओनली ऑन C एंड V, तो इसलिए हाफ CV स्क्वायर लिया। तो पहले एनर्जी इन सीरीज़ के हिसाब से एक फार्मूला बनाया, एनर्जी इन पैरेलल के हिसाब से एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया, C1 प्लस C2 मिला, उसको इसमें डाल दिया, तो C1 प्लस C2 सॉल्व करने पर C1 C2 प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट मिलने के बाद A माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स A प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4AB यूज़ किया, C1 माइनस C2 मिला, C1 माइनस C2 C1 प्लस C2 सॉल्व किया, C1 C2 मिल गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, C1 C2 को ले लो, ठीक है, और डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में अप्लाई करो, यूपी को मत अप्लाई करना, बाकी चीज़ें अप्लाई करो, देखो आंसर 36 आता है नहीं, अगर आता है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Yes, let me erase this off. Done. Focusing. Yes, focusing properly. Now let's move on to the next problem. Let me see. March 2017, no, March 2017 was asked on electric field. I have already solved that. July 2017, July 2017 is again on chapter 2. So July 2017 is your next problem. July 2017. Let me see what is the question. Yes, please make a note of the question. In a parallel plate capacitor, with air between the plates, in a parallel plate capacitor with air between the plates, in a parallel plate capacitor with air between the plates, comma, each plate has an area 8 into 10 power minus 3, each plate has an area 8 into 10 power minus 3 meter square, 8 into 10 power minus 3 meter square, and distance between the plates is 2 mm, and distance between the plates is 2 mm. Done. Full stop. Calculate the capacitance of the capacitor. Calculate the capacitance of the capacitor. Full stop. If this capacitor is connected, to a 50 volt supply, comma, what is the charge on each plate of the capacitor? Question mark. Data, given data, absolute permittivity of free space is equal to 8.85 10 power minus 12 farad per meter. I am repeating the whole question. In a parallel plate capacitor with air between the plates, comma, each plate has an area 8 into 10 power minus 3 meter square, and distance between the plates is 2 mm, full stop. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 50 volt supply, comma, what is the charge on each plate of the capacitor? Question mark. Absolute permittivity of free space is 8.85 10 to the power minus 12 farad per meter. ठीक है. तो क्वेश्चन में डेटा क्या है उसको पहले नोट करते हैं. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 8 into 10 power minus 3. So सबसे पहले एरिया 8 into 10 power minus 3, 8 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है. मीटर स्क्वायर में देता है, कभी कभार सेंटीमीटर स्क्वायर देता है. सेंटीमीटर देगा तो सेंटी को सॉल्व करना है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm. स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 mm. किसकी बात हो रही है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm. देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सी पहचानना है. और बोला था उसने कि एयर में है, तो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू दिया है. एप्सिलॉन वैल्यू वाज गिवन 8.85 10 power minus 12 farad per meter. 8.85 10 power minus 12 farad per meter. I hope it is clear. ठीक है. तो if this capacitor is connected to a 50 volt supply, potential is 50 volt. ठीक है. What is the charge on each plate of the capacitor? Q has to be calculated. ठीक है. Absolute permittivity is given. Done. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. ठीक है. बहुत ही सिंपल. डायरेक्टली वी नो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D. ठीक है.
C is equal to epsilon naught A by D, epsilon naught 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट हो गया, A क्या है 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, A भी हो गया, D क्या है 2 mm, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, वो है C इज इक्वल टू 35.4 आना चाहिए, 35.4 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड, 35.4 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, उसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करिए। फर्स्ट C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसके लिए 1 मार्क, सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क, C वैल्यू पहचान कर यूनिट के साथ लिखने के लिए 1 मार्क, 3 मार्क हो गए प्रॉब्लम के। और उसके बाद ही हैज़ ऑल्सो आस्क्ड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, इस फार्मूला के लिए फिर 1 मार्क, तो यहाँ 1 मार्क, यहाँ 1 मार्क, यहाँ 1 मार्क और यहाँ 1 मार्क, 4 मार्क हो गए। तो C वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 35.4 10 पावर माइनस 12, V कितना है 50 वोल्ट, सॉल्व करके चार्ज लिखो, चार्ज आता है कूलम में। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 1.77 10 पावर माइनस 9, 1.77 10 पावर माइनस 9 कूलम, 1.77 10 पावर माइनस 9 कूलम। तो इसके लिए 1 मार्क। आप देख सकते हो वेटेज, 1 मार्क फॉर फॉर्मूला, 1 मार्क फॉर सब्स्टिट्यूशन, 1 मार्क फॉर गेटिंग द आंसर विथ राइट यूनिट। तो 3 मार्क सिर्फ कैपेसिटर वैल्यू के लिए आ गए। फिर Q इक्वल CV डालने पर 1 मार्क, आंसर पहचानने पे 1 मार्क। आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स का, चैप्टर का नाम आपको मालूम हो जाए कि कौन से चैप्टर से आ रहा है, तो चैप्टर के पूरे डेरिवेशन फॉर्मूलाज आप लिख हुए लोगे, वहाँ पर कम से कम 2 मार्क आ जाएंगे। तो 5 मार्क प्रॉब्लम में 2 मार्क स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट ऑल, इफ़ यू आर ऑलवेज फियर्ड ऑफ इट, और यू डिडंट प्रैक्टिस, और you got panicked in the final exam and you don't know what to do, at least look at the name of the chapter, find out कैपेसिटर है तो जाहिर सी बात है चैप्टर 2 होगा, तो चैप्टर 2 के जो भी फार्मूलाज हैं लिख दो लाइन से पूरा, तो उसमें से ऑब्वियसली 1-2 फार्मूलाज तो अप्लीकेबल होंगे ही, तो अप्लीकेबल होंगे तो जाहिर सी बात है 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसलिए आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मूलाज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। डन, सो आई थिंक वी कैन डू वन मोर सम। March 2014, yeah, March 2014, next one, yes, March 2014, March 2014. Let us look at this sum. Where is the question? July, March 15, हाँ, March 2014. I'll read out the question, I'll be a little quick. In a parallel plate capacitor with air between the plate, each plate has an area 6 into 10 power minus 3 meter square, 6 into 10 power minus 3 meter square, and the distance between the plates is 3 mm, and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor, full stop. If the capacitor is connected to 100 volt supply, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? What is the charge on each plate of the capacitor? Absolute permittivity 8.85 10 power minus 12 farad per meter. क्यों बोला इतना फास्ट मैंने? क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, बस वैल्यूज चेंज हैं। ठीक है, ईच प्लेट का एरिया इस बार कितना है? ईच प्लेट का एरिया 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, इस बार A इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अच्छा सर बहुत फास्ट डिक्टेट कर दिया बोलोगे बाद में, ठीक है, तो शायद दिखाई दे रहा हो, आई होप सो, यस दिखाई दे रहा है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। नाउ कमिंग बैक टू दिस गाय, हाँ फोकस्ड। सी एरिया हैज बीन गिवन, area is 6 into 10 power minus 3 meter square. Distance between the plates is, distance between the plates small d, क्या दिया गया है? Distance between the plates is 3 mm, 3 mm, ठीक है। और calculate the capacitance of the capacitor, C equals question mark, देख रो दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पर जो था वो भी वही है। Now what else has he told? If connected to a 100 volt supply, potential 100 volt
एप्सिलॉन नॉट बोलेगा, चार्ज पहचानने के लिए बोलेगा। एप्सिलॉन नॉट दे दिया है 8.85 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, चार्ज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, थोड़े लोग ज़्यादा होशियारी करके बोलते हैं चार्ज, टोटल चार्ज आया था वो। ठीक है, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट Q डिवाइडेड बाई 2 नहीं। कैपेसिटर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी समझाया है, सीरीज पैरेलल में भी समझाया है, जो चार्ज एक प्लेट पे होता है उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दूसरे प्लेट पे होता है। सो यू नीड नॉट डू Q/2 एट द एंड। तो वापस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट करो, A सब्स्टिट्यूट करो, D सब्स्टिट्यूट करो। D 3 mm है, 3 × 10⁻³ लिखना। ठीक है, C वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। I hope I need not do this sum again. You will do it. 17.7 10⁻12. 17.7 10⁻12 is your answer, farad capacitor. ठीक है, चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल्स, चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल्स CV यूज़ करोगे, C 17.7 10⁻12, V कितना है 100। ठीक है, चार्ज वैल्यू आएगी इन कूलम। ठीक है, तो कितनी आएगी 1.77 नैनो कूलम, 1.77 नैनो कूलम। आई होप इट इज़ क्लियर। सेम सम था उसीलिए थोड़ा फास्ट किया हूँ, और भी सम्स हैं यहाँ पे। हाँ, March 2015, I'll give you the sum in the next video. I'll give the answer. March 2015, just try to solve it by yourself. ठीक है, हाँ, 2 point charges +1 nano coulomb and -4 nano coulomb, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 point charges +1 nano coulomb and -4 nano coulomb are 1 meter apart in air, are 1 meter apart in air, full stop. Find the positions along the line joining the two charges, find the positions along the line joining the two charges at which resultant potential is 0. Find the positions along the line joining the two charges at which resultant potential is 0. तो ये आपका रहा एक और सम, आप इसे सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल सॉल्व, गिव यू द आंसर ऑफ इट। ठीक है, एक और भी है जुलाई 2015 वाला, ठीक है, वो भी सुना देता हूँ। ठीक है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ABCD is a square of side 2 meter. ABCD is a square of side 2 meter. Charges of 5 nanocoulomb, 10 nanocoulomb and -5 nanocoulomb. 5 nano plus 10 nano and -5 nano. ABCD is a square of side 2 meter. Charges of 5 nanocoulomb plus 10 nanocoulomb and -5 nanocoulomb are placed at corners A, B and C respectively. A, B and C respectively. Full stop. What is the work done in transferring a charge? What is the work done in transferring a charge of 5 microcoulomb from D to the point of intersection? From D to the point of intersection of the diagonals. From D to the point of intersection of the diagonals. तो ये दो सम हम अगले सेशन में करेंगे. You try to solve it after you watch this video. Do not wait for the next video. Try to solve and keep the answers with you. You can cross check in the next video. Thank you.